پریز گاڈ. ہم بغیر وقت ضائع کیے آج کے کلام کی طرف چلیں گے اور میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 4 باب. چوتھے باب کی 23 اور 24 آیت پڑھیں گے. اور یسوع تمام گلیوں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کو ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدبوئیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. ہاللیلویہ. سو آج صبح ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح سے ایک عظیم شافی ہے. کتنے لوگ اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح سے زیادہ زبردست شافی کوئی نہیں ہے. ہم زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے کیونکہ یاد رکھیں کہ نسل انسانی کی تاریخ میں یسوع مسیح سے بڑا شافی ہمیں نہیں نظر آتا ہے. وہ عظیم شافی ہے. اور آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ یسوع ہی عظیم شافی ہے. ہیلیلویہ. گزرے کئی مہینوں سے ایک بیماری، ایک وبا نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے جس کا کیا نام ہے جی؟ کرونا وائرس. ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد سے، لاکھوں کی تعداد سے لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں. بہت سے لوگ موت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہیں. بہت سے لوگوں کی زندگی کے اوپر یہ وائرس منڈلا رہا ہے اور اس دنیا کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا ہے. WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس بیماری کا علاج نکالا جائے. اور تحقیق کے مطابق انہوں نے 16 سے 18 مہینے کا ٹائم مانگا ہے. قوم بنی اسرائیل نے بولا ہے کہ ہم کچھ ہی دیر میں اس ویکسینیشن کو تیار کر لیں گے. بہت سارے جو لوگ ہیں، بہت سارے ممالک کے اندر اس کی مناسب تفتیش کا انتظام بھی نہیں. یعنی کہ وہ چیک بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ان کے لوگوں کے اندر یہ وائرس ہے یا نہیں ہے. دنیا بڑی مشکلات کی شکار ہے. متحدہ عرب امارات کے اندر اسکول کالجز بند کر دیے گئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں. مساجد کو بند کر دیا گیا ہے. گردوارے بند کر دیے گئے ہیں. لوگوں کی جو دعا گاہیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. مختلف ممالک سے رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں. ایران سے رابطہ بند کر دیا گیا ہے. چائنا سے رابطہ بند کر دیا گیا ہے. عراق سے رابطہ بند کر دیا گیا ہے. دنیا کے اندر ایک خوف اور وسوسے کی روح ہے. ایک دہشت کی روح ہے. ہر شخص اپنے آپ کو بچاتا پھر رہا ہے کہ میں کیسے اس چیز سے بچ سکتا ہوں. لیکن آج صبح میں خدا کا خادم ہوتا ہوا کلام مقدس میں سے آپ کے لیے تسلی اور اطمینان کا پیغام لے کے آیا ہوں. اور وہ تسلی اور اطمینان کا پیغام کیا ہے کہ یاد رکھیں کہ اس دنیا کا طبیب اعظم، اس دنیا کا شافی، اس دنیا کا ماہر کل امراض، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، سرجنوں کا سرجن، اسپیشلسٹ کا اسپیشلسٹ، زندہ خدا کا بیٹا میری اور آپ کی حفاظت کے لیے اس جگہ پر موجود ہے. اور سب سے بڑی بات، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہماری پروٹیکشن ہے. زبور 91 میں لکھا کہ
वो तुझ पर से हर मोलक वबा को हटाएगा, वो तुझे हर मोलक वबा से छुड़ाएगा। लिखे तुझ पर कोई आफत ना आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। No harm will overtake you, no disaster, no disease will come near your tent. खुदा की कुदरत अपने लोगों को संभालती है। यीशु मसीह का लहू ईमानदारों की प्रोटेक्शन करता है। वो तुझे हर वबा से छुड़ाएगा। हर मोहलक वबा लिखा हुआ है, हर मोहलक वबा से छुड़ाएगा। कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना आएगी। आप ईमान रखें कि अगर आप खुदा के डर और खौफ में रहने वाले शख्स हैं, अगर आपकी जिंदगी खुदा के साथ है, आपके ऊपर यीशु के लहू की प्रोटेक्शन है। हर एक शख्स अपने दिल पे हाथ रखे और मेरे साथ ये दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी, मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि तेरा लहू हमें छुड़ाता है, तेरा लहू हमारी शिफा है। तेरा कलाम ये बयान करता है कि कोई आफत तुझ पर ना आएगी, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक ना पहुंचेगी। खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि मेरे घराने के, मेरे खानदान के, मेरे घर के, मेरी हर एक चीज के जो मुझसे मुंसलिक है, तेरे लहू की प्रोटेक्शन है। अबलीस छेड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा लहू जबरदस्त है। वो बचाता है, छुड़ाता है, रिहाई देता है। यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। याद रखें कि ईमानदार लोग और दुनियादार लोग एक ही जगह पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन खुदा ईमानदारों में और बेदीन लोगों में वाज़िया फर्क रखता है। और बाइबल इस बात को साबित करती है। इससे पहले के कौम बनी इसराइल को मुल्के मिस्र की गुलामी से निकाला जाता, उनको वादा की सरजमीन के ऊपर ले जाया जाता, लिखा है कि खुदा ने मिस्रियों के ऊपर 10 आफत भेजी। उस आफत के वसीला से मिस्रियों को हलाक किया गया। ये मिस्री और कौम बनी इसराइल ये एक ही मुल्क में मुकीम थे, ये एक ही जगह पर रहते थे। ये मुल्के मिस्र के बाशिंदे थे, मिस्री भी वहीं थे और यहूदी भी वहीं थे। इन दोनों कौमों की हवा और फिजा एक थी, इन दोनों का पानी एक था। ये एक जगह पर सांस लेते थे, ये एक ही तरह की खुराक खाते थे। मगर जब आफत आई तो मिस्रियों के ऊपर आई, इसराइलियों के ऊपर नहीं आई। खुदा की कुदरत ने कौम बनी इसराइल को आगे और पीछे से घेर रखा था। वही खुदा आज मेरे और आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहां पे है। इसलिए मत घबराएं। बाइबल कहती है खौफ ना खा, मैं तेरे साथ हूं। खुदा की कुदरत और उसका हाथ अपने लोगों के ऊपर बड़ा हुआ है। हालेलुया। और अगर हम खरूज की किताब का मुताला करें तो हम देखते हैं कि उन आफत में से बहुत सारी आफत के बीच में मूसा खुदा से शफायत करता है। क्यों? क्योंकि फिरौन मजबूर होकर मूसा के सामने आके गिड़गड़ाता कि तू अपने खुदा के सामने मेरे और मेरी कौम के लिए शफायत कर, ताकि वो हमें इस वबा से, इस आफत से छुड़ाए। और लिखा है कि मूसा उस आफत के बाद खुदा से दुआ करता और फिरौन और उसकी कौम रिहाई पाती। यानी बताने का मकसद यह है कि खुदा के लोग कौमों की शिफा का सबब बन जाते हैं। खुदा के लोग लोगों की रिहाई का सबब बनते हैं। खुदा अपने लोगों के वसीला से लोगों को शिफा अता करता है, कौमों को शिफा अता करता है। और खुदा के लोग कभी रहे हुए मालूम नहीं होते। खुदा की कुदरत उनको घेरे रहती है, यीशु के लहू की प्रोटेक्शन उनके चौगिर्द रहती है। और आखिरी आफत क्या थी? आखिरी आफत क्या थी मिस्रियों के ऊपर? उनके पेलोठे मार दिए गए, ऐसे ही है।
اور لکھا ہے کہ نہ صرف انسانوں کے پلوٹے بلکہ جانوروں کے پلوٹوں کو بھی مار دیا گیا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں، کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک کتا بھی نہ مرا. اگر آپ خدا کے خوف میں رہنے والے ہیں تو یاد رکھیں، نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے جانوروں کے گرد یسوع کے لہو کی پروٹیکشن رہتی ہے. اور خدا نے مصریوں کو مارا، ان کے پلوٹے مارے، اور اپنے زور بازو سے اپنی قوم کو جو اس کی برگزیدہ تھی ملک مصر سے نکالا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخری آفت کے اندر اسرائیلیوں کو کون سی ایک چیز تھی جس نے بچایا؟ برے کا خون. لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر برے کا خون لگایا. یعنی برے کے خون کے اندر شفا اور ان کی سلامتی چھپی ہوئی تھی. جہاں جہاں پہ برے کا خون تھا وہاں سے فرشتہ گزرتا اور ان کو ہلاک نہ کرتا، بلکہ جہاں پہ برے کا خون اس نے نہیں پایا وہاں پر اس نے لوگوں کو ہلاک کیا. یاد رہے کہ وہی برے کا خون میری اور آپ کی پروٹیکشن ہے. آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس بات کو بھول جائیں، جتنا بھی خوف ہے بھول جائیں. آپ کے ارد گرد اگر کوئی مر بھی رہا ہے تو بھول جائیں. ایمان رکھیں کہ مصریوں کے پلوٹے مرے لیکن یہودیوں کا ایک کتا بھی نہ مرا. وہی لہو میرے اور آپ کے ساتھ ہے، وہی قدرت میرے اور آپ کے ساتھ ہے. بائبل کہتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں ایمان ہے تو پھر کوئی مہلک وبا آپ کو چھو نہیں پائے گی. لیکن اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں تو ابلیس آپ پہ حملہ کرتا ہے. ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. یہ قوم ایمان رکھتی تھی کہ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری ہر ایک چیز کی محافظت کرے گا. اور برے کے خون نے ان سب کو سلامتی بخشی. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا لہو، غور سے سنیے گا، یسوع مسیح کا لہو پرانے عہد نامہ کے مقدسین کو شفا بخشتا تھا. یسوع مسیح کا لہو نئے عہد نامہ کے مقدسین کو شفا بخشتا رہا. یسوع مسیح کا لہو آج کے مقدسین کو شفا بخشتا ہے. اور یسوع کا لہو روز عدالت کے دن تک آنے والے لوگوں کو شفا بخشتا رہے گا. ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ بولیں کہ پرانے عہد نامے کے مقدسین کو کیسے، جبکہ یسوع مسیح کا کفارہ نئے عہد نامہ میں ہوا ہے. لیکن میں آج آپ کو کلام مقدس میں سے بتاؤں گا کہ یسوع مسیح کا جو کفارہ تھا وہ جسمانی طور پہ جسم میں اس دنیا میں ہوا، لیکن روحانی عالم میں اس دنیا کے بننے سے پہلے، اس دنیا کا وجود رکھنے سے پہلے یسوع مسیح کا کفارہ ہوا. اور جو خون بہایا گیا روحانی عالم میں بہایا گیا، اور وہی خون جو روحانی عالم میں بہایا گیا اس خون کے وسیلہ سے پرانے عہد نامہ کے مقدسین شفا پاتے تھے. یہی خون پیلوٹوں کی حفاظت کے لیے تھا، یہی خون قوم بنی اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھا، یہی خون ان کو جب بحر کلزم سے گزرے تو وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا. یہی خون آج تک یہودیوں کی، ایمانداروں کی حفاظت کرتا ہے. کیونکہ یسوع مسیح کا جسمانی کفارہ نئے عہد نامہ میں ہے، لیکن اس کا روحانی عالم میں کفارہ اس دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے کر دیا گیا. میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، مکاشفہ کی کتاب اس کا 13 باب اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے. اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے اس حیوان کی پرستش کریں گے. ہاں جی، کب سے ذبح ہوا ہے؟ انگلش میں لکھا ہے فرام دا فاؤنڈیشن آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے اس کو ذبح کیا گیا. ایک اور حوالہ نکالیں گے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 19 اور 20 آیت. یہاں پہ
बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि दुनिया की बुनियाद रखने से पहले पतरस कहता है कि वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा हमारे लिए उसने अपना खून बहाया। जी पढ़ेंगे। बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से, उसका इल्म तो बनाए आलम से बेशतर था, मगर ज़हूर अखीर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ। हाँ जी, उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था। तो यहां पे क्या लिखा है कि उसका जो बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की बुनियाद रखने से पहले, दुनिया की बुनियाद रखने से पहले यीशु मसीह का कफारा किया गया है। और यही कफारा, यही खून जो दुनिया की बुनियाद रखने से पहले किया गया, वो पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन को शिफा देता था, नए अहदनामा के मुकद्दसीन को शिफा देता है, आज भी देता है और देता ही रहेगा। दुनिया मुख्तलिफ वायरसों से लड़ने के लिए एंटी वायरसेस खाती है, दुनिया मुख्तलिफ वायरसों से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स खाती है, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के लहू से बड़ी एंटीबायोटिक कोई नहीं है जो हमें हर तरह की बीमारी से शिफा देती है। आपका ईमान होना चाहिए, कैसा भी वायरस आपके बदन में है, यीशु का लहू उस वायरस को खत्म करने की कुदरत रखता है। इसलिए क्योंकि वो ही इज अ ग्रेट हीलर, वो अजीम शाफी है, उसके पास कुदरत और कुव्वत है, वो जलाल का बादशाह है, वो जंग में जोरावर खुदावंद है और वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। आपके इर्द गिर्द जो भी है, मत डरें, ईमान रखें कि यीशु तेरा लहू मेरी शिफा के लिए है, तेरे लहू की कुव्वत के वसीला से मेरी निजात है और मेरी शिफा है। चाहे कोई भी वबा आए, मैं तेरे लहू की प्रोटेक्शन में हूं, कोई चीज मुझे छूने ना पाएगी। और अगर आप ईमान में कमजोर हैं और किसी भी वजह से आपके बदन के अंदर कोई वायरस आ भी जाता है, तो याद रखें कि वो वायरस आपको मार नहीं सकता। गो आप मौत के दरवाजे तक पहुंच भी जाए तो भी खुदा की कुदरत और खुदा की कुव्वत आपको वहां से छुड़ाने की कुदरत रखती है। अगर हम सलातीन किताब का मुताला करें तो हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह, ये वो बादशाह था जो दाऊद की नस्ल में से था, और खुदा ने अपने बंदा यशायाह को भेजा और उसको बोला कि जा मेरे बंदा हिजकिय्याह को बोल दे कि तू मरने वाला है और तू बचने का नहीं, अपने घर का बंदोबस्त कर ले, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। उसको एक मौलक बीमारी होगी, उसको एक वबा ने घेर लिया और खुदा ने यशायाह को भेजा, जा हिजकिय्याह को कहा कि तू बचेगा नहीं बल्कि तू मर जाएगा, अपने घर का बंदोबस्त कर। लेकिन ये मर्द खुदा हिजकिय्याह, ये खुदा की कुदरत को जानता था, ये जानता था कि जिस खुदा के ऊपर मैं ईमान रखता हूं वो मुझे मौत की वादियों में से छुड़ाने की कुदरत रखता है। और लिखा है कि हिजकिय्याह उठा और उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और उसने दुआ की और कहा, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वो ही किया। और लिखा कि हिजकिय्याह ज़ारो कतार रोया। और याद रखें कि अगर आप खुदा के साथ दयानादार हैं, आप वफादार हैं, आप खुदा की राहों पर चलते हैं, आप वो ही करते हैं जो खुदा की नजर में भला है, तो आप अपने बुरे वक्त के अंदर हिजकिय्याह की तरह खुदा को याद करा सकते हैं कि आए खुदावंद याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर में दयानादारी से चलता रहा हूं। और क्या लिखा है कि हिजकिय्याह जब रोया तो हिजकिय्याह के आंसुओं ने खुदा के इरादे को बदल दिया, हिजकिय्याह के आंसुओं ने मौत के बंधन तोड़ डाले, हिजकिय्याह के आंसुओं ने अपने लिए जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। और लिखा है कि यशायाह अभी शहर के बीच में भी ना पहुंचा था कि खुदा का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ और खुदा ने बोला, जा मेरे बंदा हिजकिय्याह को जाके बोल कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैं तुझे शिफा बख्शूंगा। खुदा के लोग जब खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं, खुदा के हुजूर झुक जाते हैं, दयानादारी के साथ, वफादारी के साथ,
खुदा अपने लोगों को मौत की वादियों में से छुड़ा लेता है। दाऊद कहता है, ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। खुदा का आसा और उसकी लाठी ईमानदारों की प्रोटेक्शन है। खुदा अपने लोगों को संभालता है। और क्या हुआ हम देखते हैं, निकाले मेरे साथ सलातीन की किताब, उसका दूसरी सलातीन, उसका 20 बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे जरा। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि यशायाह निकल कर शहर के बीच हिस्सा तक पहुंचा भी न था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा। मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदा ने हिजकिय्याह के आंसुओं के सबब से उसको उस मोहलक बीमारी से शिफा दी, और क्या लिखा कि मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ाऊंगा। आप ऐसे खुदा के मानने वाले हैं जो मौत के दरवाजों को बंद कर देता है आपके लिए और आपके लिए जिंदगी के दरवाजे खोलता है। 15 साल उस शख्स की उम्र को बढ़ा दिया गया, और लिखा खुदा ने कहा मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैं तुझे शिफा बख्शूंगा। अगर आज कोई शख्स यहां पे बीमार बैठा है तो खुदा उससे कलाम कर रहा है। खुदा कह रहा है कि मैं तुझे शिफा बख्शूंगा, मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, मत रो, मैं तेरे साथ हूं। और लिखा है कि खुदा ने 15 साल हिजकिय्याह बादशाह की उम्र को बढ़ा दिया। खुदावंद ने इसको संभाला। वही खुदा आज मेरे और आपके साथ है, और हमें ईमान रखना है कि खुदावंद हमें हर चीज से छुड़ाने की कुदरत रखता है। हमारी मरकजी आयात में हमने एक बात पढ़ी कि यीशु मसीह करता था, हर तरह की बीमारी से, क्या वर्ड यूज हुआ है, हर तरह की बीमारी। हर तरह में कोरोना वायरस भी आता है, हर तरह में कोरोना वायरस भी है। कोई भी बीमारी है, कोरोना से बड़ी भी कोई बीमारी है, तो याद रखें खुदा आपको उससे बचाने की कुदरत रखता है। यीशु का लहू आपके साथ है, उसके लहू की बाढ़ आपके चौगिर्द है, और इब्लीस आपको छेड़ नहीं सकता। इब्लीस डरता और थरथराता है। ये वायरस, ये वबा जो है, ये दुनिया में ईमानदारों के लिए नहीं है, याद रखें। बाइबल मुकद्दस का पैटर्न है, खुदा ने जब कभी कौमों को हलाक किया तो उसने वबा के वसीला से किया, मगर ईमानदारों को कभी खुदा वबा से हलाक नहीं करता। रास्तबाज शख्स के ऊपर उसकी खास निगाह रहती है, उसका कभी हाथ बड़ा रहता है, वो अपने लोगों को अपने हाथों में उठा के रखता है। और इस दुनिया की और कलाम मुकद्दस की 6.5 साला तारीख के अंदर यीशु मसीह से बड़ा शाफी हमें नजर नहीं आता। अगर हम अनाजील अरबा का मुताला करें, यानी 4 अंजीलों को देखें, तो यीशु मसीह के हमें 40 मौजज़ात उसमें नजर आते हैं। कितने? 40 मौजज़ात, जबकि यीशु मसीह ने 40 से कई ज्यादा मौजे किए। अगर आप यूहन्ना की इंजील का आखिरी बाब पढ़े तो आप लिखे कि और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो इस दुनिया में रखने के लिए किताबों की जगह ना रहती। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने सिर्फ 40 मौजे से बहुत सारे मौजज़ात किए, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर जो उसके 40 मौजे हैं, उन 40 मौजों के अंदर सबसे बड़ा और सबसे आखिरी मौजा कौन सा था? कौन सा था यीशु मसीह का आखिरी मौजा? लाजर को जिंदा करना। लाजर को जिंदा करने का मौजा मैं आप लोगों को पहले भी एक बार बयान कर चुका हूं कि उसकी क्या वजह थी, लेकिन आज रूह कुदस चाहता है कि मैं आपको एक बार फिर वो बयान करूं कि यीशु मसीह ने वो मौजा क्यों परफॉर्म किया और उसमें यीशु मसीह क्या बताना चाहता था। क्यों लाजर का जो मौजा था, लाजर को जिंदा किया जाना, खुदावंद ने
آخر میں کیا اور اس کے اندر ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح واحد انسان تھا جس نے اس دنیا کے اندر ہیلنگ منسٹری کا آغاز کیا. یسوع مسیح کی جتنا سب سے پہلے جو شفائیہ وزارت تھی اس دنیا میں وہ کس کی تھی؟ یسوع مسیح کی. یعنی یسوع مسیح نے ہیلنگ منسٹری کا آغاز کیا, اس کے بعد شاگرد, اور آج بہت سارے لوگ ہیلنگ منسٹری کرتے ہیں, لیکن اس کا بانی کون ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح نے اس دنیا پہ اس کا آغاز کیا, اور سب سے بڑا معجزہ جو اس نے دکھایا اس کا ہم مقصد جانیں گے کہ لازر کو جو اس نے زندہ کیا اس کے اندر ہمارے لیے کیا میسج ہے. میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل, اس کا 11 باب, اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں گے. مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتنیہ کا لازر نام ایک آدمی بیمار تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے. اسی کا بھائی لازر بیمار تھا. پس اس کی بہنوں نے اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند, دیکھ جسے تو عزیز رکھتا ہے اور وہ بیمار ہے. یسوع نے یہ سن کر کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے, تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. اور یسوع مرتھا اور اس کی بہن اور لازر سے محبت رکھتا تھا. پس جب اس نے سنا کہ وہ بیمار ہے تو جس جگہ تھا وہی 2 دن اور رہا. ہاں جی, دیکھیں گے یہ کہ یسوع مسیح جس جگہ پر تھا وہاں پہ 2 دن اور کیوں رہا, اور یسوع مسیح نے یہ کیوں کہا کہ یہ بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے ہے, تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. یہاں پہ یسوع مسیح 2 باتیں کرتے ہیں. پہلی بات کرتے ہیں کہ خدا کے جلال کے لیے, پہلی بات. دوسری بات کیا ہے؟ خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. تو یسوع مسیح اس معجزے میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خدا کون ہے, خدا کا جلال کیا ہے, اور خدا کا بیٹا کون ہے, اور اس کا جلال کیا ہے. خدا کا جلال کیوں یسوع مسیح ظاہر کرنا چاہتا تھا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر یونانیوں کی حکمت بہت افزون تھی, بہت بلندی پہ تھی, بہت ترقی یافتہ تھے وہ لوگ. جس طرح آج ہم امریکہ اور یہودیوں کو کہتے ہیں, اس وقت یونانی جو تھے وہ حکمت میں بڑے افضل تھے, اور ان کی حکمت کی تصدیق جو ہے وہ خدا یسوع مسیح نے خود کی. یسوع مسیح نے کیا بولا کہ یونانی حکمت ڈھونڈتے ہیں اور یہودی نشان کی بات کرتے ہیں. یعنی یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو یونانی ہیں ان کی حکمت بہت افضل ہے. اور یونانیوں کی حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح 3 دن تک اس روئے زمین کے اوپر بھٹکتی رہتی ہے. کوئی بھی شخص, کوئی بھی عالم, کوئی بھی نبی, کوئی بھی معجزہ دکھانے والا, کوئی بھی جادوگر اپنے علم کے وسیلہ سے اس روح کو واپس اس مردے کے اندر بلا سکتا ہے. یہ یونانیوں کی حکمت تھی, اور ان کا ماننا تھا کہ اگر 3 دن سے زیادہ ہو جائیں, 4تھے دن وہ روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے, اور اس کو بلانے کا اختیار انسان کے پاس نہیں بلکہ خدا کے پاس ہے. اس روح کو صرف اور صرف کون بلا سکتا ہے؟ خدا بلا سکتا ہے. پہلا پرپس یہ تھا یسوع مسیح کا وہاں پہ 2 دن رکنے کا کہ میں اس مردے کو 4 دن کے بعد زندہ کروں گا, کیونکہ یونانی سمجھتے تھے کہ یہ مردہ 4 دن کے بعد انسان چاہے جتنا مرضی بڑا نبی ہو وہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا, صرف خدا کر سکتا ہے. دوسری بات ہم نے کیا دیکھی کہ یسوع نے بولا کہ خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہو. خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر کیوں یسوع مسیح نے بولا؟ کیونکہ یہودی قوم کسی بھی طور سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. وہ کہتے تھے کس طرح سے ممکن ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان کا روپ لے کے آئے, کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا انسانی جسم میں آ جائے. اور نہ صرف یہودی, یونانی بھی یہی کہتے تھے کہ خدا انسان کا روپ نہیں لے سکتا. یسوع مسیح ایک اچھا نبی, ایک اچھا استاد ضرور ہوگا, لیکن یہ خدا نہیں, نہ خدا کا بیٹا ہے. اور یسوع مسیح اس معجزے کو کرنے کے 2 مقاصد رکھتا تھا. پہلا وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ خدا کا جلال ظاہر کرے گا, یعنی وہ بذات خود خدا ہے. اور دوسری بات وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہی خدا کا بیٹا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح وہاں پہ 2 دن رک گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع مسیح اسی ٹائم اٹھتا اور جا کے
याद रखेंगे यीशु मसीह को लाजर की मौत की खबर नहीं दी गई। यीशु मसीह को लाजर की मौत की खबर नहीं दी गई, वहां पे लिखा है कि उसको उसकी बीमारी की खबर दी है। गौर से पढ़े पहली 5 आयत को, मौत की खबर नहीं दी है, उसको बताया वो बीमार है। और यीशु मसीह बजाय ये कि वो उठे और जाके उनको शिफा दे, यीशु मसीह 2 दिन वहां पे और रुक गया, क्योंकि यीशु मसीह यहां पे खुदा की कुदरत को दिखाना चाहता था कि वो जोरावर है, वही खुदा का बेटा है, वो खुदा का कलमा है, वो मुजस्सम होकर आया है और इस दुनिया का शाफी है। शिफा उसमें से निकलती और सादर होती है। और क्या हुआ, यहूदी शक करते हैं, यूनानी शक करते हैं, और इसके साथ कांग्रीगेशन, कलीसिया, अपने शागिर्द शक करते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 4 दिन का मुर्दा यीशु जिंदा करेगा। याद रखें, आज भी कलीसिया में शक एक कीड़े की तरह लोगों को खा जाता है। अगर आपकी जिंदगी में शक है कि यीशु कुछ नहीं कर सकता, तो उस शक का इलाज करें। यीशु सब कुछ कर सकता है, यीशु की कुदरत सबसे बड़ी है, वो अजीम शाफी है, ही इज अ ग्रेट हीलर। और क्या हुआ, शागिर्दों का बयान देखते हैं। शागिर्द शक करते हैं, मेरे साथ निकालें, यही बात पढ़ेंगे 11वें बाब की आप 8वीं आयत पढ़े। शागिर्दों का बयान सुने। शागिर्द कहते हैं, शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। हाँ जी, तो यहां पे जब यीशु मसीह ने बोला है कि आओ हम लाजर को जिंदा करने जाएं, तो वो कहते हैं कि अभी तो तुझे यहूदी संसार करने, तो फिर जा रहा, क्योंकि वो ईमान रखते थे इस बात पे कि यीशु मसीह इस मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि 4 दिन के बाद कोई इंसान मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। फिर यीशु मसीह का जो शागिर्द तोमा है, उसका बयान सुने। 16वीं आयत पढ़ें जी। पर तोमा ने, जिसे तोआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। हाँ जी, अब यहां पे तोमा क्या कहता है कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें, क्योंकि उसने अपने ज़हन में सोच लिया है कि यीशु मसीह एक ऐसा काम करने जा रहा है जो इससे होना नहीं, और जब ये वहां पे पहुंचेगा इससे मुर्दा जिंदा नहीं होगा और लोग इसको संसार करेंगे और हम भी संसार होंगे और साथ मरेंगे। इसलिए कहता आओ हम इसके साथ चलें ताकि हम भी मरें। यानी वो समझ गए थे कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसका नतीजा हमारे लिए मौत है। ऐसा नहीं था कि शागिर्दों ने यीशु मसीह को इससे पहले कभी मुर्दा जिंदा करते नहीं देखा। अगर आप कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो यीशु मसीह ने लाजर से पहले 2 और मुर्दे जिंदा किए। कौन कौन सा? यायर की बेटी और नाइन शहर की बेवा का जो बेटा था। लेकिन इन 2 मुर्दों में और लाजर में एक वाज़िया फर्क था। ये दोनों मुर्दे जो जिंदा किए गए, ये अपनी मौत के चंद घंटों के बाद, यायर की बेटी उसके घर में जिंदा कर दी गई और जो बेवा का बेटा था वो फाटक के ऊपर, कब्र में उतारने से पहले फाटक पे उसको जिंदा कर दिया गया। लेकिन लाजर 4 दिन से कब्र के अंदर है, और ये जान गए कि इसने जो 2 मुर्दे जिंदा किए हैं वो तो उसने चंद घंटों में कर दिए हैं, ये मुर्दा ये जिंदा नहीं कर सकता। शक ने शागिर्दों को भी घेर लिया। और क्या लिखा है कि यीशु लाजर की बहन मर्था और मरियम से मिलने को गया, और यीशु ने जब यीशु वहां पहुंचा तो लिखा कि मर्था यीशु को मिली और उसने बोला कि आए खुदावंद, अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उसे क्या बोला कि तेरा भाई जी उठेगा, और वो अपने ईमान के मुताबिक कहती है कि हां खुदावंद, मैं जानती हूं कि वो जी उठेगा रोज़े अदालत के दिन, यानी क़यामत के दिन वो जी उठेगा। यीशु ने बोला कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, आई एम द लाइफ एंड रेजरेक्शन। यीशु ने बोला कि मैं हर बात का इख्तियार रखता हूं। और लिखा है कि यीशु ने बोला कि तुमने उसे कहां पे रखा है? उन्होंने बोला चल के देख लेगा। और लिखा कि यीशु के आंसू बहने लगे, और लोगों ने बोला कि देखो वो इसको कैसा अजीज रखता था। और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि क्या ये जिसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, क्या ये ऐसा ना कर सकता, ये उसको जिंदा कर सकता? लोग बुड़बुड़ाने लगे। और लिखा है कि यीशु उनके साथ कब्र पे गया, और यीशु ने बोला कब्र का पत्थर हटाओ। और मरियम और मार्था कहती हैं कि यीशु
उसको तो कब्र में रखे 4 दिन हो गए, उसमें से तो बदबू आती होगी। यीशु ने क्या बोला कि मैंने तुझे कहा ना था कि अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का जलाल देखेगी। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ईमान रखते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, यीशु का लहू सब कुछ कर सकता है, तो याद रखें आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर होगा। और लिखा खुदा ने बोला कि यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ। मेरे साथ पढ़े, इसकी 38 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे जी। यीशु फिर अपने दिल में नहायत रंजीदा होकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए शख्स की बहन मर्था ने उसे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए। यीशु ने उसे कहा, क्या मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा। हाँ जी, यहां पर यीशु मसीह के शागिर्द मौजूद हैं, मरियम और मर्था मौजूद है, यूनानी मौजूद है, वो लोग जो दावा करते थे कि यीशु मसीह किसी तरह से इस मुर्दे को जिंदा नहीं करता, यीशु मसीह नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। ये सारा ग्रोह वहां पर मौजूद है और लिखा है कि यीशु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के बाइस, इन लोगों के बाइस जो वहां पे यहूदी थे, यूनानी थे, शागिर्द थे, मरियम और मर्था थी, लिखा है इन लोगों के बाइस जो आसपास खड़े हैं, मैंने कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और लिखा है ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, आए लाजर निकला। मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि याद रखें कि मुर्दे सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज सुनते हैं, और वो जिंदा खुदा के बेटे की आवाज है। हालेलुया। और लिखा है कि जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव लिपटे बाहर आ गया। मुर्दे और रूहें सिर्फ एक आवाज जानती हैं, और वो एक नाम किसके पास है? मेरे और आपके पास यीशु का नाम है। हालेलुया। इसलिए याद रखें, कोई कोरोना वायरस आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप ईमान रखें, क्योंकि बाइबल कहती है कि ईमान रखने वालों के दरमियान मोइज़ात होंगे। और बात यहां खत्म नहीं होती। 12वें बाब की 20वीं आयत में वो यूनानी जो इस बात का दावा करते थे कि यीशु कैसे या कोई भी शख्स कैसे ये काम कर सकता है, लिखा है उन्होंने क्या किया। 12वें बाब की 20 आयत में पढ़ूंगा। लिखा है जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। उन्होंने बोला ये कौन है जो इस तरह की कुदरत रखता है कि 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दे? ये बेशक खुदा का बेटा है। और लिखा है कि वो कहते हैं कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। आज कितने हैं जो यीशु को देखना चाहते हैं? अपने कदमों पे खड़े होंगे। हालेलुया। मैं दुआ करना चाहता हूं, हम आज यीशु मसीह की कुदरत को देखेंगे। हम ईमान रखेंगे कि खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। दुनिया में कैसी भी वबा है, कोई भी वायरस है, किसी तरह की भी मोहलक बीमारी इस मुल्क में, इस दुनिया में है, खुदावन ईमानदारों के पास ये इख्तियार है कि वो तेरे लहू के वसीला से प्रोटेक्ट है। शिखा राबासी शिंदो रोबो। पास्टर साहब आप आगे आ जाए, भाई आमिर, भाई बाबर, भाई जी ने सब सामने आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब गैर जुबानों में दुआ करेंगे। जो गैर जुबान में दुआ कर सकता है वो दुआ करेगा। हम यीशु के लोगों की प्रोटेक्शन इस कलीसिया पे, इस मुल्क पे, इस दुनिया पे चाहेंगे। हम ईमान रखेंगे कि यीशु का लहू सब कुछ कर सकता है। आज हम यीशु की कुदरत को देखेंगे कि यीशु किस तरह से अपने लोगों के साथ है। शिंदो रोबोसी रेबेसी शिंदो रोबो बोबोसी शिखा राबासी शिंदो रोबो बोबोसी रेबे बे 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 शिंदो रोबोबोसी रेबे बे 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 सी शिखा राबा बाबा बासी शिंदो रोबो बो 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 सी शिंदो रोबोसी रेबेसी रेबे बे 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 शिखा राबासी शिंदो रोबो। खुदावंद यीशु नासरी तेरा खादम होता हुआ कलीसिया के एक एक शख्स के ऊपर, एक एक खानदान के ऊपर, एक एक बहन के ऊपर,
एक एक भाई के ऊपर, एक एक बच्चे के ऊपर तेरे लहू की प्रोटेक्शन चाहता हूं, क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि यीशु तेरा लहू हमारी बेहतरीन एंटीबायोटिक है। मैं ईमान रखता हूं कि तेरा लहू हमारा बेहतरीन एंटीवायरस है। मैं ईमान रखता हूं कि तेरे लहू के वसीला से हमारी शिफा है। तेरे लहू के वसीला से यीशु नासरी हम शिफा पाते हैं। जिस तरह मुकद्दसीन पुराने ऐदनामा में, नए ऐदनामा में शिफा पाते, आज के मुकद्दसीन भी या खुदाउन उसी लहू को पुकारते हैं। तेरा खादम होता हुआ खुदाउन पूरी कलीसिया के ऊपर तेरा लहू चाहता हूं, इनके खानदानों पे तेरा लहू चाहता हूं, इनकी हर एक चीज पे तेरा लहू चाहता हूं। जो चीज इनसे मुंसलिक है खुदाउन, उसको तेरा लहू घेर ले। तेरे जंगजू फरिश्ते जो हमारी हिफाजत के लिए, वो आके उन नपाक फोर्सेस से, उन नपाक कुव्वतों से जंग करें और तेरे लोगों को मुहावजत में रखें। तेरा कलाम कहता है कि खुदावंद से डरने वालों के चगिर्द उसका फरिश्ता खैमजन रहता है। ऐ खुदावंद तेरे फरिश्ते को खैमजन करते हैं, एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बच्चे के लिए, इनके घरों के लिए, इस पूरी कलीसिया के ऊपर तेरे लहू की बाढ़ चाहते हैं। तेरे पाक फरिश्ते चाहते हैं, तेरा लहू चाहते हैं खुदावंद, क्योंकि हमारी शिफा सिर्फ और सिर्फ तेरे लहू में है। तू अजीम शाफी है, तू अजीम कुदरत रखता है। ऐ खुदावंद तेरी कुदरत को कौन बयान कर सकता है। तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे और ईमान रखेंगे आज कि आज के बाद जब तक ये वायरस इस दुनिया से, इस मुल्क से खत्म नहीं होता, आप हर रोज अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घर के लिए यीशु के लहू को क्लेम करेंगे। हालेलुया। कोई मोहलक वबा तुझे नहीं छेड़ सकती। लिखा कि मैं तुझे हर मोहलक वबा से छुड़ाऊंगा, कोई आफत तुझ पे ना आएगी। यीशु आपको हर आफत से बचाने को दर्द रखता है।